and on we'll go. We are going to start with index number. Yes, after completion of correlation, this is the last chapter of statistics. Yes, this is the last chapter of statistics. Yes, what is that? It is called index number. What is index number? ये index number क्या होता है? Confusion है ना? सर ये index number क्या होता है? Index number एक we say that it is a type of statistical tool. ये क्या है? ये एक statistical tool है. कैसा statistical tool? It is that tool which give us what? Which tells us what the amount, what the percentage change is coming between two commodities, quantity और price और value. मतलब किसी commodity की price में कितना change आया, उसकी value में कितना change आया, उसके quantity में कितना change आया, we call it as index number. So what is the definition? Definition is, it is a statistical tool designed to show changes in variables. ये क्या है? ये एक statistical tool है जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो हमें बताएगा changes in the variables with respect to time and geographical location. और भी बहुत सारे आपके characteristics हो सकते हैं. तो बेसिकली हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं प्राइस एंड जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में. व्हाट इज दैट? प्राइस एंड जियोग्राफिकल लोकेशन. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ मैगी, if I am comparing the price of Maggi, so if I am telling you, just tell me what is the price of your Maggi in the year 16-17? Sir, it is 10 rupees. Okay. What is the current price of 21-22 for the one unit of Maggi? So it is 12 rupees. So here we are comparing that we have a difference of 2 rupees. So this is called the index number. But here we are going with the formula for converting into percentage, and we know the actual number of index, right? So index number is what? Index number tells us the how much percentage change is there in the given quantity or in a price or in a value of two or more than two commodities, right? So basically हम जनरली किसके बारे में, जैसे अगर सपोज करो मैं बात करूं सेंसस की, तो सेंसस कब हुआ था? सेंसस हुआ था 2011 में, राइट? और अब जब सेंसस होगा कब होगा? 21-22 वाला सेंसस होगा. तो एट दैट टाइम यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है वही क्या कहलाता है? इंडेक्स नंबर कहलाता है. यहां से हम क्या कर पाएंगे? फाइंड आउट कर पाएंगे कितना पॉपुलेशन में चेंज आया, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज में क्या क्या चेंजेस आए, लिटरेसी कितनी बढ़ी या घटी, पॉपुलेशन बढ़ी या घटी, राइट? तो दीज ऑल आर कॉल्ड इंडेक्स नंबर, राइट? तो वी हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो टू फाइंड इंडेक्स नंबर. हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के. ओके, सो नाउ we are going to discuss the features or characteristics of index number. We are going to discuss features and characteristics of index number. So we have index number are specialized average. Index number क्या है? ये specialized average है, like mean, median and mode, right? फिर index number are expressed in percentage. इंडेक्स नंबर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. दैट इज वाई द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर ऑलवेज गेट मल्टीप्लाई बाय 100. क्यों? क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में निकालना होता है. लेकिन हाँ, याद रहे आंसर में परसेंटेज नहीं लगाते, परसेंटेज का साइन को यूज नहीं करते इंडेक्स नंबर में, लेकिन परसेंटेज में वैल्यू को निकालते हैं. ओके, नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द रिलेशन टू टाइम और प्लेस. क्या इंडेक्स नंबर जो है टाइम और प्लेस के कंपैरिजन में क्या करता है? कंपैरिजन करता है और हमें इंडेक्स नंबर फाइंड कैलकुलेट करता है. फॉर एग्जांपल, पेठा फ्रॉम आगरा, हमारे यहाँ का पेठा आगरा, राइट? एज यू ऑल नो दैट वी आर बिलोंग टू आगरा. तो यहाँ पर जो पेठा का जो प्राइस है एंड द प्राइस ऑफ पेठा इन महाराष्ट्र, दोनों में डिफरेंस होगा क्योंकि लोकेशन चेंज हो गई. हमारे यहाँ पे पेठे के लिए फेवरेबल क्लाइमेट है,
फेवरेबल लेबर्स हैं, फेवरेबल रॉ मटेरियल है, बट द सेम इज नॉट देयर, तो दैट इज व्हाई दे रिक्वायर्ड लेबर्स फ्रॉम हेयर, और they take the product which is manufactured in Agra to that place, so there is an extra cost of transportation also engaged in it, so the price becomes high. So the changes of price due to location and time and the price, generally it affects these type of things. For example, we have consumer price index. Consumer price index क्या है? जो हमें बताता है महंगाई बढ़ रही है। जल्दी देखा होगा ना, लोग बताते हैं महंगाई बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है महंगाई? कैसे पता लगाते हो महंगाई बढ़ रही है? वो क्या है? एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो उसने बाउंड्री बना दी, राइट। इस बाउंड्री के ऊपर जब प्राइसेस जा रहे हैं ना, तो क्या है? महंगाई बढ़ रही है, ये शो होता है। तो ये किसकी वजह से हुआ? इंडेक्स नंबर की वजह से। तो इंडेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस क्रिएट करता है हमारे लिए कि हम जान पाएँ कि प्राइस में कितने कितने चेंजेस आए। अगर मैं आपको बोलूँ बेटा ऐसा करो, लिखो। सर क्या लिखें? लिखो, पहले हमारे यहाँ 2011 में जो वीट का प्रोडक्शन हुआ था वो 10,000 टन का हुआ था, 2013 में हमारे यहाँ 50,000 टन का हुआ, फिर 2018 में हमारे यहाँ 1 लाख टन का हुआ। इस तरीके से मैंने बता दिया डिफरेंट। अब निकालो इंडेक्स नंबर, कितना चेंज आया बताओ? ये कंफ्यूज सर, कितना चेंज आया नहीं पता। तो इंडेक्स नंबर is that convenient number which tells you the easy way to find what the changes are coming in your price or in your quantity or your comparative values, right? So let us start with that. We have 3 types of index number. First we have price index, second we have quantity index, and third we have value index. Price index represent with P, quantity index represent with Q, and value index represent with V. V for when, right? So here सबसे important बात जो इस चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको जरूर पता होनी चाहिए, वो है 0 और 1 का कॉन्सेप्ट। 0 और 1 का कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं सेंसस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सेंसस की। अब सेंसस की अगर हम बात करें तो 2011 में जो सेंसस हुआ था और 2021-22 का जो सेंसस होने वाला है, वो अगर मैं दोनों कंपेयर करता हूं तो किससे कंपेयर कर रहा हूं? 2021 वाले को 2011 से कंपेयर करूंगा, तभी तो बताऊंगा प्राइस कितना, वो पॉपुलेशन कितनी बड़ी, पॉपुलेशन कितनी बड़ी इन कंपेयर टू 2011 वाला सेंसस। तो 2011 वाला जो सेंसस है वो मेरा बेस ईयर है, और 2021 वाला जो सेंसस है वो मेरा करंट ईयर है, राइट? तो 0 का मतलब बेस ईयर, 1 का मतलब करंट ईयर। दोबारा बोल रहा हूं, 2021 में जो सेंसस होना था वो और 2011 में सेंसस हुआ था वो, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो अगर 2021 में हम बोलेंगे कि 2021-22 वाला जो सेंसस है जो अब होने वाला है, तो अब क्या होगा कि अगर मैं चेक करूं कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, किसके कंपैरिजन में? 2011 के कंपैरिजन में। अगर मैं अपने आप को 2011 से कंपेयर करता हूं तो 2011 को हम बोलेंगे बेस इंडेक्स, बेस 0, और हमारा 2021-22 1 फॉर द करंट ईयर, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि प्राइस जो हमारी पॉपुलेशन है और हमारा, या फिर हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और 2011 वाला और 2021 वाला दोनों को कंपेयर करता हूं, ये कहते हुए कि मैं 11 को कंपेयर कर रहा हूं 21 से। तो एट दैट टाइम मेरा जो 21 वाला है वो बेस ईयर हो जाएगा और 11 वाला करंट ईयर हो जाएगा। मतलब जिससे भी कंपेयर करते हैं ना, जिससे भी कंपेयर करोगे वो क्या हो जाएगा? वो आपका बेस ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस ईयर। जिससे भी आपको कंपेयर करना है वो कहलाएगा 0 कॉल्ड बेस ईयर, और जिसको भी कर रहे हो वो 1 कॉल्ड करंट ईयर। होप इट इज क्लियर? आप सब लोग देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 0 स्टैंड्स फॉर बेस ईयर एंड 1 स्टैंड फॉर करंट ईयर। 0 का मतलब बेस ईयर है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है P0 मतलब बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर। कहीं पे लिखा हुआ है P1 तो प्राइस ऑफ करंट ईयर। कहीं पे लिखा है Q0 तो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, राइट?
सो यहां पर 0 का मतलब बेस ईयर होता है, 1 का मतलब करंट ईयर होता है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात, P01 अगर आपके फॉर्मूले में उसने पूछा कैलकुलेट P01 कैलकुलेट करना है, तो देखो जो 0 लिखा है, जो भी पहले लिखा होगा 01 लिखा है ना, तो 0 को डिनोमिनेटर में रखेंगे और 1 को न्यूमरेटर में रखेंगे। P01 में जो 0 है वो है आपका डिनोमिनेटर और 1 जो है वो क्या है, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर into 100 we convert into percentage, that's why we do it multiply. So 1 on 0, क्या बोले हम बोले 1 on 0, 1 किस पर है, 0 पर। तो हम यहां बोल सकते हैं, मैं लिख के दिखाता हूं, मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूं कि हम क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ 1 आर compared from P1 अपॉन P0 इंटू 100, हमने परसेंटेज वो फॉर्मूला बनाया। तो P01 मीन्स प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर, राइट। इसलिए बेस ईयर डिनोमिनेटर में जाएगा, करंट ईयर ऊपर जाएगा, इसलिए मैं लिखा प्राइस ऑफ 1 आर कंपेयर्ड फ्रॉम 0, मतलब प्राइस जो है करंट ईयर का वो कंपेयर हो रहा है किससे, बेस ईयर से, इसलिए लिखा P01। और अगर P10 होगा तो प्राइस ऑफ बेस ईयर इज कंपेयर टू 1, तो प्राइस ऑफ बेस ईयर कंपेयर कर रहे हो 1 से। तो फॉर्मूला क्या है, P01 का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100, P10 का फॉर्मूला P0 अपॉन P1 इंटू 100, वी आर पुटिंग 100 ऑल्सो, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 01 लिखा है तो जो पहले लिखा है, पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है 0 आ जाएगा नीचे, बाद में क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 हो गया। ऐसे ही अगर हम यहां पे बात करें 1 on 0, तो ये क्या हो गया, 1 on 0, 1 किसके ऊपर है, 0 के ऊपर, इसलिए मैंने बोला प्राइस ऑफ 1 आर कंपेयर्ड फ्रॉम 0, 1 को कंपेयर कर रहे हैं 0 से, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि प्राइस ऑफ करंट ईयर कंपेयर हो रहा है बेस ईयर से, कहां पे, P01 में, राइट। और P10 में प्राइस ऑफ बेस ईयर कंपेयर हो रहा है किससे, करंट ईयर से, ठीक है। क्लियर है यहां तक। इसको बोलते हैं 1 on 0, इसको बोलते हैं 0 on 1, 1 on 0 एंड 0 on 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर की जो मेथड है कैलकुलेशन के, प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं, तो वी हैव 2 मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर। फर्स्ट इज सिंपल इंडेक्स नंबर एंड सेकंड इज वेटेज इंडेक्स नंबर। तो सिंपल इंडेक्स नंबर 2 टाइप का होता है, सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड। क्या, जो हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर है वो 2 टाइप का होता है, सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास P01 मतलब क्या, प्राइस ऑफ 1 कंपेयर्ड फ्रॉम 0, तो प्राइस ऑफ 1 कंपेयर हुआ 0 से, तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया, सिग्मा मींस समेशन, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, पूरा चैप्टर बहुत इजी है, बस अभी हमें सिर्फ फॉर्मूला समझना है, ठीक है। सिमिलरली ये तो हो गया हमारा किसका, ये हो गया सिंपल एग्रीगेट मेथड का। अब हम बात करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। तो P01 यहां पे हमने क्या लिया है, P01 मींस प्राइस ऑफ 1 कंपेयर टू 0, इसलिए हमने यहां पे फॉर्मूला क्या रखा, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n। अब इन सबको हम क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन करके सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरे प्रॉपर्ली। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा, राइट। अभी यहां तक क्लियर हो गया। अब जैसे वेटेज इंडेक्स नंबर है तो उसका है हमारे पास वेटेज एग्रीगेटिव मेथड और वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो हमारे पास ये वाला जो मेथड है वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है,
जनरली इस क्वेश्चन वाले मेथड से क्वेश्चन पूछता है और मैं भी इसी वाले मेथड से पूछने वाला हूं। तो बी श्योर दैट कि आप अच्छे से इसको अच्छे से नोट कर लो, अपनी कॉपी में नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके सारे नोट्स पूरा अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, सो दैट यू गेट फुल मार्क्स।